and for today our topic of discussion will be Kingdom Monera. As you know, we have discussed all the systems of classification based on the kingdom system as well as artificial, natural and phylogenetic. So if you haven't watched that video, I'll provide the link in the description. Please do check it out. So for today we'll be discussing a new topic, that is Kingdom Monera. So let's begin. The first kingdom is Kingdom Monera, which is consisting about all the bacteria or the prokaryotic forms. So Monera में हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ठीक है. नाउ इसके कुछ जनरल फीचर्स पता होने चाहिए जो कि ऑब्वियसली पता होंगे, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं, फिलामेंटस हैं एंड कॉलोनियल है. सो फिलामेंटस का क्या मतलब है कि वो दैट इज मेड अप ऑफ, द बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्टेन फिलामेंट्स और द यूनिट्स, ठीक है. और कॉलोनियल का मतलब है कि दे टेंड टू एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास तीन मेन फीचर्स आते हैं, विच इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फिलामेंटस एज वेल एज कॉलोनियल फॉर्म्स. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिससे कि हम बैक्टीरिया को रेस्ट ऑफ द यूकैरियोट से अलग रखते हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. न्यूक्लियस में भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और इसीलिए हम न्यूक्लियस वर्ड बैक्टीरिया में यूज नहीं करते हैं. इंस्टेड वी यूज अ टर्म नोन एज न्यूक्लियोइड, which we will be studying further when we will be talking about the each and every components, ठीक है. तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल वॉल. Here the cell wall is made up of a special chemical or a special substance known as peptidoglycan. Peptido means amino acids, glycan means sugar or carbohydrates. So it is a combination of amino acid and peptidoglycan. Sugars. So, but there are two exceptions. Which one? First exception is Archaebacteria, whose cell wall is made of not peptidoglycan that we have discussed earlier. It is also known as a primitive kind of bacteria, and its cell wall is made up of lipopolysaccharide, right? And the second one is Mycoplasma, which is a bacteria which lacks cell wall, so it don't have any cell wall, ठीक है. तो यहाँ पे दो एक्सेप्शंस पढ़े. वैसे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट द टू एक्सेप्शंस आर देयर, व्हिच इज आर्किया जिसकी सेल वॉल बनी होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड से, एंड देन माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल ऑल टुगेदर एब्सेंट है, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन ब्रॉडली, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है दैट इज व्हाट? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. Now autotrophic and heterotrophic में then finally autotrophic divided into photoautotrophic and photoautolithotrophic, that we will be discussing further, right? And heterotroph में saprophytic, parasitic and symbiotic, right? Now reproduction can be asexual by means of fissions and spore formations, and sexual by means of conjugations, transformation and transduction. ये भी हम बाद में पढ़ेंगे. And the last one is, अब बैक्टीरिया क्लासिफाई कैसे होता है? तो जब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम यूजुअली दो टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं. क्या? एक करते हैं आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है. अब इस आर्किया बैक्टीरिया में वी क्लासिफाई इनटू 3 सब डिविजन्स. First one is methanogens. Second one is thermoacidophiles या files.
thermoacidophiles, and third one is halophiles. So methanogens, thermoacidophiles and halophiles, whereas in eubacteria we'll be discussing normal bacteria, cyanobacteria which is blue green algae, and the last one is mycoplasma. So this is a basic short description कि हम आगे क्या पढ़ेंगे. बैक्टीरिया ग्रुप completely classify हो सकता है on the basis of their cell wall into archaebacteria and eubacteria. Now archaebacteria is further classified into three subtypes, which is methanogens, thermoacidophiles, halophiles, and eubacteria into bacteria, cyanobacteria or blue green algae, and mycoplasma. So this is the classification based on the structure or based on the components of cell wall. The cell wall is made up of which component, right? If it is made up of lipopolysaccharide, then we will be placing it in under archaebacteria. और अगर वो normal peptidoglycan से बनी होगी तो हम place करेंगे उसे eubacteria में. ठीक है? Now talking about the archaebacteria in detail, first of all we should talk about methanogens. तो नाम से ट्राई करो, मीथेनोजेंस मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है बाय मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, बट कोई ना कोई रिएक्टेंट साइड पे तो होगा ना. तो रिएक्टेंट कौन होता है, CO2, मीथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड. इन तीनों से मिलकर क्या बनाते हैं ये बैक्टीरिया, मीथेन गैस. एंड यूजुअली दीज बैक्टीरियाज आर फाउंड इन मार्शी हैबिटेट्स. तो ये कहां पर पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में. ठीक है, तभी आप देखते हो मार्शी एरियाज में मीथेन गैस का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है ना. सो मार्शी हैबिटेट्स में इनका हैबिटेट है. एंड देन the last thing that you have to remember about methanogens is कि ये usually ruminant animals और ruminant cattle जैसे होते हैं, cow, buffalo, sheep like this. तो सबके ruminant cattle में इनके stomach में ये बैक्टीरिया पाया जाता है. That's why cow dung or these cattle's dung smells like a methane gas. तो उस काउ डंग की मीथेन गैस की रिलीजिंग कैपेबिलिटी होती है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड इन बायोगैस प्लांट. ठीक है, सो यूजुअली दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ ruminant cattles or ruminant animals or cattles. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखें मीथेनोजेंस में. नाउ द सेकेंड वन इज thermoacidophiles. As the name is suggesting, thermo means temperature, acido means acid. Philes का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, राइट. Similarly, thermoacidophiles means temperature, acid, loving species. ठीक है, तो these bacteria are temperature and acid loving in nature. ठीक है, second जो है they produce sulfur. ठीक है, they oxidize sulfur to produce H2SO4. ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे. These bacteria tend to convert the sulfur into an sulfuric acid. ठीक है, तो ये यूजुअली हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है. These organisms और these bacteria ये रिएक्शंस करते हैं. Now क्योंकि टेम्परेचर एंड एसिड लविंग स्पीशीज है, तो दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन यूजुअली हाई टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एंड ऑल्सो वेयर एसिडिटी इज वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि उन्हें पसंद है. और दूसरी चीज, ये रिएक्शन याद रखनी है, 2s plus 3O2 plus 2H2O at around 80 degrees Celsius give rise to 2H2SO4. Also, these are known as oldest living fossils. They are the oldest living fossils. ठीक है, तो ये टर्म याद रखोगे कि जो आज भी प्रेजेंट है,
ये सबसे पुराने फॉसिल्स हैं, लिविंग फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स है और इसमें यूजुअली याद क्या रखना है कि इतना बस याद रखो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये, दे यूजुअली ऑक्सीडाइज सल्फर एट हाई टेम्परेचर। डन। तो यहां पर हो गया थर्मो एसिडोफाइल्स। नाउ कम्स हैलोफाइल्स। व्हाट डू यू मीन बाय हैलोफाइल्स? दीज आर, हैलो मीन्स सॉल्टी, सो यहां पर दे लाइक सॉल्टी हैबिटेट, राइट, और दे लिव इन मराइन कंडीशंस, है ना, जहां पे बहुत सारा सॉल्ट मिले उन्हें, तो सॉल्टी हैबिटेट में रहना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज याद रखनी है कि ये इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, देयर मेम्ब्रेन एक पिगमेंट सिंथेसाइज करती है। सो देयर मेम्ब्रेन सिंथेसाइज a pigment called, a bacterial pigment called bacteriorhodopsin। ये पिगमेंट जो है ना, ये सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है विथ द रोडोप्सिन पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट आई। जो हमारी आईज में एक रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, सेम उसी का होमोलॉग होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया हैलोफाइल्स, जहां पर बैक्टीरियो रोडोप्सिन के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। क्योंकि ये बैक्टीरियल पिगमेंट है इसलिए नाम हो गया बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है यहाँ पर, ये एक तरीके का ना, इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन पंप। ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। एंड दिस पिगमेंट इज यूज्ड टू synthesize ATP by या to harness sunlight or by harnessing sunlight, right? तो ये सनलाइट को यूज करके, हार्नेस करके, इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन पंप और ये मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन्स को, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज होगा, right? So this pigment acts as a proton pump. It is used to generate ATP by harnessing sunlight, right? So यहाँ पे ये एक main point आता है. Also these organisms are heterotrophic in nature. ठीक है? So they don't make their own food. तो these are heterotrophic in nature. ठीक है, तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया अबाउट द किंगडम, अबाउट द सब डिविजन आर्किया बैक्टीरिया। सो वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पहला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, जिसमें हमने आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अलग किया, और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, और थर्ड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो अभी हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया, जिसमें हमने आर्किया बैक्टीरिया के 3 सब डिविजन्स के बारे में पढ़ा है, और यू बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि यू बैक्टीरिया बहुत वास्ट कंसेप्ट है, तो इसके बाद बेसिस ऑफ सारे क्लासिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फिर यू बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ऑल द क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट टाइप कर लिया। सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सो शेप के बेसिस पे अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, सो इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: कोकस विच इज स्फेरिकल शेप, बैसिलस विच इज रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड एंड कॉमा शेप्ड। ठीक है, अब नाउ सम डिटेल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर आर: कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप्ड, बट मोनोकोकस मीन्स single spherical bacterial cell. Diplococcus means 2. So Diplococcus means 2 types of cells. Third, Streptococcus means they are spherical in nature. There are more than 2, but they are arranged in a linear fashion, in a chain like fashion. So Streptococcus का मतलब ये chain like association है. Then Staphylococcus का मतलब है कि chain like नहीं है, number are more than 2, but they are arranged in a kind of clusters. ठीक है, so Staphylococcus का मतलब हो गया arranged in clusters. Now Sarcina means
द 3D ओरिएंटेशन ऑफ अ बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया आसपास आकर एसोसिएट करते हैं बट दे हैव फॉर्म्ड अ 3D काइंड ऑफ ओरिएंटेशन और 3D काइंड ऑफ एसोसिएशन, देन वी कॉल इट एज सार्सीना। देन बैसिलस में सेम टर्म्स है, वही मीनिंग है। मोनोबैसिलस मीन्स सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया, डिप्लोबैसिलस मीन्स two rod shaped bacteria, streptobacillus means more than 2 bacteria arranged in a chain, and then palisade. Now what is palisade? If you remember, in parenchyma we have two types of like अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस में, तो हमारे पास एक पैलिसेड पैरेन्काइमा होता था और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता था, याद है? तो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होता था वहां पे, उसका क्या मतलब था कि इट इज वेरी टाइटली अरेंज्ड और बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थे, और दूसरा वो लैमिलर स्ट्रक्चर्स थे कुछ, जैसे ग्राना थाइलाकॉइड में देखते हैं स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स, लैमिलर स्ट्रक्चर्स, उसी को हम बोल देते हैं पैलिसेड ओरिएंटेशन, विच मीन्स द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया stacked over each other without any intercellular spacing. तो यहाँ पे आ जाता है ये palisade kind of arrangement in case of bacillus. Then in comma shaped we have to remember just one example, that is Vibrio, and one of the species of Vibrio is Vibrio cholera that causes cholera disease, and also they don't have any flagella, so a kind of shape is like this, a comma shaped and without any flagella. ठीक है, उसके बाद स्पाइरल शेप का एक एग्जांपल याद रखोगे, स्पिरुलम, और यहाँ पे फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला कैसा होता है? एक स्पाइरल लाइक बॉडी होती है इनकी, दोनों साइड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. सो दिस इज अ बेसिक type of classification on the basis of shape of bacteria. Then now we'll study the basis of classification as the flagella. The last type of classification of bacteria is on the basis of flagella. ठीक है, तो यहाँ पे 6 types of bacteria हम पढ़ते हैं. तो first of all monotrichous. Mono means one. तो यहाँ पर क्या है? एक बैक्टीरिया के एक साइड पे वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाता है? मोनोट्राइकस, मतलब वन फ्लैजिला एट वन एंड. ठीक है, तो वन फ्लैजिला एट वन एंड. नाउ इन एम्फीट्राइकस, एम्फी मींस बोथ साइड्स, है ना? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीबॉलिक, जहां पे भी हम एम्फी यूज करते हैं, दैट यूज टू डिनोट काइंड ऑफ टू पैरामीटर स्टेज, है ना? तो यहाँ पे क्या है? एम्फी मीन्स ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, तो सिंगल फ्लैजिला ऑन बोथ साइड्स, तो वन फ्लैजिला एट बोथ साइड्स इज एम्फीट्राइकस. नाउ लोफोट्राइकस मीन्स लोफ, ब्रेड का लोफ होता है ना, तो लोफ का क्या मतलब है? कि टफ्ट ऑफ ब्रेड, है ना? सिमिलरली टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, बट दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड. So tuft of flagella present on one side of bacteria. Then cephalotrichus means tuft of bacteria present on both the sides. तो यहाँ पे अगर ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पे दोनों साइड पे tuft of flagella is present. ठीक है, तो यहाँ पर tuft of flagella on both sides. Then peritrichous means, now एक एक हो गया, टफ्ट हो गया, क्या बचा? पेरीट्राइकस का मतलब पूरी बॉडी में द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय फ्लैजिला फ्रॉम ऑल ओवर द सरफेस. तो अगर किसी बैक्टीरिया के चारों तरफ पूरी बॉडी में अगर फ्लैजिला कवर्ड है तो ये वाले टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज पेरीट्राइकस. तो ये होल बॉडी कवर्ड हो गया, होल बॉडी बैक्टीरिया, और जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है. ठीक है, ऑल ओवर द सरफेस. नाउ एट्राइकस मींस व्हाट? कहीं पर भी अगर ए लग जाता है दैट मींस एब्सेंट. तो एट्राइकस का मतलब नो फ्लैजिला, अ बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला. ठीक है, तो यहां पर नो फ्लैजिला. जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था विब्रियो, है ना? विब्रियो जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया था, उसमें फ्लैजिला नहीं था. तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला क्लासिफाई करते हैं तो विब्रियो कहां पर आता है? एट्राइकस में. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम यू बैक्टीरिया का
कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि क्या क्या कंपोनेंट है और उसका कंपोनेंट डिटेल में. So in the next lecture we will be studying the components in detail of the bacterial cell. Done? So for today, that's all. I'm just sitting here. I got time.